Don't follow the crowd, let the crowd follow you. Good evening, myself Roshan, and I welcome you all on the platform of All India Debating Society. And today we are with a man for whom the phrase which I used in the beginning aptly suits and fits in. The pen is his life, the gun is his profession, and the camera his passion. Yes, I am talking about Sri Vikash Vaibhavji, who is an IPS officer with a background from IIT, loves to tease the students and explores the heritage archaeological sites. He's so pro people that he organizes regular darbar to hear people's complaints. His portfolio speaks of a range of services from NIA special investigations to put the bridle on Bahubalis, crime mafias, and dacoits. Sir is equally capable of doing justice with his passion and the profession at the same time, and his past has proved his potential to this effect in an illustrious manner. He is too gentle and soft when he talks, but roars like a tiger when he writes. His writings constituting the clarion call of developing heritage consciousness in every Indian citizen's heart has transcended every barrier of distance as more and more people are getting inspired and connecting to him through his scholarly works which travel faster than his bullets. The strength of his scholarship has brought him a massive recognition as he has become a celebrated public figure. The serenity surrounds his countenance. His principle gets mirrored in his courageous and conviction. One should always remember, remain gentle with the gentle people and tough with the tough is what we can learn from Sir. Sir, before we begin our conversation, I would like to usher a few lines for you. अश्वमेघ की नाद हो चुका खिल उठा है सौरभ अंबर धरा पाताल सबके हृदय में बसते हैं गौरव युद्ध श्रृंखला के योद्धा भी सर नवाए पांडव कौरव वर्तमान युग के कर्ण नमन है आपको श्री विकास वैभव. Coming back to today's discussion, for which I am being joined by Sri Jagannath Kashyap to have a conversation with you, sir, on the topic Bharat ka Atit, Vartaman और Bhavishya. And I would like to quote you to begin things off, sir. And I quote, the most effective way to destroy people is to deny and obliterate understanding of their history. तो सर ये जो कथन आपने कहा है इससे हम क्या समझे कि जो असली इतिहास का बोध है, इतिहास का ज्ञान है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक जो जो पता होना चाहिए आम जनता को, आम लोगों को, रिसर्चर्स में, एकेडमिया में, क्या वो मिसिंग है? क्या एक डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ हिस्ट्री हम सबको पता है और जो नेचुरल और ओरिजिनल हिस्ट्री है, हिस्टोरियोग्राफी है, उससे हम लोग वंचित रह गए हैं? जी बिल्कुल. सबसे पहले मुझे इस ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी में बुलाने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं. जो विषय है भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य, जो बात आपने शुरू की इस बात से, निश्चित रूप से अगर किसी भी सभ्यता को देखेंगे, उस सभ्यता की जो जड़ें होती हैं, उसकी सांस्कृतिक जड़ें होती हैं. लोग अपने पास्ट से सीखते हैं, उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, और कहीं ना कहीं जब नेशनलिज्म इमर्ज कर रही थी तो हर नेशन की हिस्ट्री को अगर आप देखते हैं तो उसके पास में कुछ चीजें हैं जिसने उनको डिफाइन किया. उसी तरह से भारत के पास में जब हम देखते हैं तो पिक्चर जो इमर्ज करता है उसको इस तरह से आप देखेंगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, और बहुत चीजें जो बिल्कुल स्पष्ट थी लिखी हुई हैं दीवार पे, लेकिन उसको लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं. तो ऐसा क्यों है? किसी भी सभ्यता ने जब किसी दूसरी सभ्यता पर राज किया तो उसके जो मुख्य प्रतीक चिन्ह थे या मुख्य चीजें थी जिनसे वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते थे, उनको दुत्कारा, उनको धिक्कारा, और एक इस प्रकार की भावना जनरेट की जिससे कॉन्फिडेंस नहीं रहे. तो भारत के साथ भी ऐसा होता रहा. अनेक आक्रमण हुए, समय के साथ चीजें बदलती गई, बहुत सारी इतने द्वंद्व हैं हिस्ट्री में, इट हैज बिकम सो मिस्टीरियस, जो कि एक्चुअली ऐसा नहीं है. जैसे आपको एक उदाहरण से मैं प्रारंभ करना चाहूंगा. सब लोग जानते हैं कि जो वैदिक लिटरेचर है, ऋग्वेद है, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है. उसको अगर आप पढ़ेंगे, कितने उच्च कोटि की सोच है, किस प्रकार की भाषा है, उसका वर्णन करना बहुत आसान नहीं है. जिस सभ्यता ने उस प्रकार की उच्च कोटि के ग्रंथ को बना सकते थे, तो आप सोचिए कितने हजारों साल की उसमें एक परंपरा रही होगी. और वैसी परंपरा जो उस समय लिखने की भी परंपरा नहीं थी, मौखिक रूप से बिल्कुल उसी फॉर्म में सदियों तक चलती रही. लेकिन जब इतनी बड़ी सभ्यता थी जो ऐसे ग्रंथ का निर्माण कर सकती थी, क्या उनके कुछ अवशेष नहीं मिलेंगे? अब दूसरी तरफ आप देखिए तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी मिली.
बीसवीं सदी के प्रारंभ में, उसमें ऐसा कंफ्यूजन है कि इतनी चीजें दिखती हैं, इतनी विशाल सभ्यता है, सब कुछ जो चीज लोथल में मिलती है वही चीज आपको मोहनजोदड़ो में भी मिलती है, सैकड़ों किलोमीटर दूर है, बिल्कुल वही डिजाइन, बिल्कुल वही चीजें। ऐसी सभ्यता निश्चित किसी न किसी ग्रंथ से प्रेरित रही होगी। और शुरू में जब बात हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम लोगों ने उसे जाना, लेकिन हाल में जब सैटेलाइट इमेजिंग से चीजें और स्पष्ट होती गई, तो जिस सरस्वती को लोग विलुप्त मानते थे, कोई अफगानिस्तान में खोजता था, उसके पूरे प्रतीक मिलते चले गए। और जब साइट्स का हमने अध्ययन, तो अधिकांश साइट्स उस समय की सरस्वती के किनारे हैं। तो अब इन दोनों को अगर हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दृष्टि भ्रम है। और ये भ्रम और फैलाया जा रहा है, कुछ लोग प्रायोजित रूप से करते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे कंफ्यूजन हैं, जिसको अगर हम ठीक से समझेंगे तो एक्चुअली कंफ्यूजन है ही नहीं। एक सभ्यता थी जिसके प्रतीक से हम गौरवान्वित हो सकते हैं, लेकिन उसको हम जानबूझकर लोगों को न बताना चाहते हैं और न चाहते हैं उससे कोई इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। एक बहुत बड़ा द्वंद है, जिसमें जब भी हम बात करेंगे भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य में, तो सबसे पहले जो अतीत का द्वंद है उसको क्लियर करना होगा, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ियां हैं उसके मन में द्वंद नहीं हो। किसी भी राष्ट्र को नष्ट करने का सबसे आसान तरीका है उसके पास्ट के प्रति वो गौरव की फीलिंग अगर आती है, उसको नष्ट कर दीजिए। आप बताइए, आप तो कुछ थे ही नहीं। और यही काम लगभग अंग्रेजों ने भी किया, उससे पहले जो शासक आए उनके द्वारा भी यही काम किया जाता रहा। ऐसा भी समय था जो आपको अपने फेस्टिवल्स भी मनाने की परमिशन नहीं थी। बहुत सारी चीजें इतिहास में हमने देखी हैं। लेकिन आज जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हैं, तो हर राष्ट्र के अपने प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें उसकी विरासत को संजोना है, उसको समझना है। और जितनी जल्दी, जितने अच्छे से, बिना कंफ्यूजन के, बिना द्वंद्वों के अपने विरासत को हम समझेंगे, निश्चित वर्तमान में उससे प्रेरणा लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। सर, इतिहास की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग भारत के विभाजन की ओर जाना हम लोग जरूरी समझते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भारत का जो विभाजन हुआ उससे एक सभ्यता और जो परंपरा था हमारा, उसके साथ एक खिलवाड़ किया गया। तो क्या समझते हैं कि विभाजन एक बहुत बड़ा तरीका था जिसने हमारे इतिहास को प्रभावित किया? नहीं, निश्चित। अब जैसे आज मैं भी हूँ, आज रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन यदि मुझसे कोई तक्षशिला की बात करता है तो आई फील वेरी कनेक्टेड। चीजें वही थी, संस्कृति वही थी। आज मुझसे कोई बात करता है काबुल की, तो मुझे ऐसा लगता है कभी कुहा नदी के किनारे मेरे पूर्वज भी रहे होंगे, जाते होंगे। मुल्तान से बड़ा जुड़ा हुआ हूं, मैंने उसको ब्लॉग भी लिखा है। तो एक संस्कृति थी जिसकी जो रूट्स हैं वो एक भूभाग में सीमित होकर रह गई। लेकिन जो संस्कृति होती है धर्म के आधार पर नहीं चलती है। धर्म, उसमें एक लोगों की विचार पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन संस्कृति कहीं ना कहीं एक हजारों वर्षों से निर्मित एक चीज है, एक परंपरा है। और विभाजन की जो सोच थी, इट वॉज वेरी लेमेंटेबल। भारत एक था, आप सोचिए अगर आज हम एक रहे होते तो विश्व में अगर उस प्रकार का द्वंद नहीं रहा होता, तो हम तो उसी में उलझे रहते हैं। अब खैर उससे काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी काफी एनर्जी उसमें चली जाती है। शत्रु अनावश्यक, जो अपना ही था, शत्रु बन बैठा है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, ऐतिहासिक रूप से जब हम देखते हैं तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, विभाजन होना पड़ा। अब जो स्थिति है उसके हिसाब से फ्यूचर के लिए हमें फिर से सोचना होगा, और हम कर रहे हैं। सर, एक पर्सनल सवाल ये था कि वो मुझे शुरुआत में पूछना था, बट चूंकि इतिहास पे बात होने लग गई तो मैंने आपका जिक्र नहीं किया। सर, आईआईटी से आईपीएस बनने का सफर कैसा रहा और क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था? मैंने काफी आपके वीडियोस देखे जिसमें आपने जिक्र किया कि रामधारी सिंह दिनकर आपके बहुत बड़े मार्गदर्शक के रूप में रहे साहित्य में। आपने उनको कविताओं से बहुत प्रेरणा ली। अष्टावक्र का आपने बहुत बार जिक्र किया। तो सर, कुछ अपने इस जर्नी के बारे में बताइए। ट्रांजिशन कैसे हुआ, क्या मोटिवेशन था? और आज के दिन में तो आप युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं, तो युवा बहुत, जो हमारे मंच पे आज के युवा देख रहे होंगे, वो बहुत कुछ सीखने के लिए उनके लिए अवसर है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा आप ज्ञानवर्धन कीजिए। नहीं, बचपन से ही एक भावना मन में जरूर थी कि समाज के लिए कुछ करना है। और सिविल सर्विसेज की तरफ में जब मैं देखता था तो मुझे लगता था एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं था। आईआईटी जब पहुंचा उस समय और भी गर्मी की छुट्टियों में इतिहास पढ़ने का अवसर मिला, स्वामी विवेकानंद को पढ़ने का अवसर मिला। तब मैंने देखा एक समय ऐसा था जब वास्तव में अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, और हर प्रकार से भारत की संस्कृति को दुत्कारा जा रहा था, धिक्कारा जा रहा था।
लेकिन उसी समय स्वामी विवेकानंद का उदय हुआ। उन्हीं ग्रंथों से, जिनको एक दुत्कारने की भावना से लोग वर्णन किया करते थे, प्रेरणा लेकर उन्होंने भारत के युवाओं का मार्गदर्शन किया। एक नई कॉन्फिडेंस की जागृति हुई, एक नए बोध की जागृति हुई, एक राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति हुई। इस तरफ से जब मैं देखता था अपने बिहार के इतिहास को, मैं देखता था एक समय ऐसा था जब तकनीक बिल्कुल विकसित नहीं थे, संचार के माध्यम बिल्कुल विकसित नहीं थे, लेकिन ऐसे समय में उस समय के बिहार ने मार्गदर्शन प्रदान किया, नेतृत्व किया अखंड भारत का, जिसकी सीमाएं तक्षशिला से उस पार तक थी, पूर्व तक थी और दक्षिण तक थी। ऐसे समय में जब हम कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर सकते? तब मैं देखता था कि जो पास्ट रहा है बिहार का, ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी, और वर्तमान में वो चीजें नहीं दिखती। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये करूं तो ठीक है, अपना व्यक्तिगत जीवन तो अच्छा कर लूंगा, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे संतुष्टि मिले, योगदान दिया जाए। उसी भावना से तब मैंने तैयारी शुरू की और सिलसिला चल रहा है, वो क्रम चलता रहा। और इतिहास से जुड़ा हुआ, और जिस इतिहास ने मुझे एक पुलिस पदाधिकारी के रूप में परिवर्तित कर दिया, उससे नाता गहराता गया। जहां भी जाता तो विरासत उस अवस्था में मिलती जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। तब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, क्योंकि जिन स्थानों को कोई नहीं जानते थे उसमें नए परिप्रेक्ष्य से उनको देखना, उनसे प्रेरणा ग्रहण करना, और जो चीजें मुझे प्रेरित कर सकती हैं, मेरा मानना है कि अगर अच्छी भावना से और लोग भी उसको देखेंगे, निश्चित प्रेरणा मिलेगी और अच्छे भविष्य का निर्माण तभी हम कर पाने में सक्षम हो सकेंगे। बिल्कुल। जगन्नाथ जी, आप सर से वार्ता। जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार। आपने सर प्रारंभिक जब टिप्पणी की, तभी आपने बताया कि किस प्रकार से जब इन्वेडर्स भारत आए, तो एक तरह से उन्होंने लैंड का इन्वेजन तो था ही, बट इट वाज मोर ऑफ ए कल्चरल इन्वेजन, जो कि आपने इंगित करने की कोशिश की सर, और वो 16 आने सच भी है। मैं उसी से आगे बढ़कर के पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे विषय में है कि हमारा अतीत भी है, वर्तमान भी, और भविष्य की भी आपसे चर्चा करेंगे। और वर्तमान समय में आप जैसा अनुभव, चूंकि प्रैक्टिकल फील्ड का है, तो आप उपयुक्त व्यक्ति भी सबसे अधिक है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर, आप ही के जवाब से, कि ठीक है, हमारा जब कल्चरल इन्वेजन हुआ, हम जब तक गुलामी की दास्तां में रहे, तब तो उन्होंने हमें हमारे कल्चर्स को बड़े सुनियोजित तरीके से रियून किया। उसके बाद हम जब सर आगे बढ़ते हैं, जब हमें आजादी मिली, तो हमने देखा कि जितनी भी हमारे मुख्य संस्थाएं थी, यहां तक कि हमारे संविधान में भी जो चित्रकारियां हुई, उसमें जो हमारे एंशियंट जो हीरोज हैं, हमारे प्रभु राम कृष्ण और अन्य, उनकी उस पर चित्रकारियां हुई, या फिर हमारे जितने प्रमुख संस्थान में केंद्रीय विद्यालय का पढ़ा हो, उसका ध्येय वाक्य, हमारे अन्य, चाहे पुलिस का हो, सेनाओं का ध्येय वाक्य, सभी संस्कृत के, और आपने ऋग्वेद का जिक्र किया, उसके श्लोक, वेदों के श्लोक, उपनिषदों के श्लोक वहां रहते हैं। हमारे जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, वो भी उसी प्रकार से उपनिषदों से लिए गए। लेकिन अब हम क्या देखते हैं सर, कि 70 वर्ष की यात्रा में वर्तमान में जो विमर्श चला है, मैं केंद्रीय विद्यालय का उदाहरण लेके बताना चाहूंगा कि 8 या 10 के आसपास उसके प्रतीक चिन्ह को लेकर के डिबेट शुरू हो गई, कि उसमें उगता हुआ सूरज और कमल था, उसको बदलने की बात होने लगी। ऐसे ही कई ध्येय वाक्यों को लेकर के आपत्ति होने लगती है। आपने कहा कि हमें तो अपने सांस्कृतिक जो हमारे गौरव की प्रतीक है, उनसे और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उन पर गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन आजादी के 70 वर्ष बाद ये कैसी मानसिकता से डेवलप हुई हमारे अंदर कि उन चीजों पर गौरव, जो हम बचा पाए, बहुत चीजें तो चली गई, लेकिन जो बचा पाए उन पर गौरव महसूस करने के बजाय, गर्व महसूस करने के बजाय, आज उन पर एक नकारात्मक डिबेट शुरू होता है। उनको कभी सांप्रदायिकता से जोड़ा जाता है, कभी कुछ चीजों से जोड़ा जाता है। तो आप इसको किस चीज को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं सर? क्या मैकाले शिक्षा पद्धति जो 70 वर्षों तक हम चलाते रहे, उसके वजह से आपको परिणाम हो रहा है, या अन्य? सर, आपके माध्यम से थोड़ा इस पे मैं जानना चाहूंगा। जो चीज हो रही है सभी लोग जानते हैं क्या हो रहा है, और बिल्कुल ही अजीब सा लगता है देखकर कि इतना कंफ्यूजन क्यों है। ऐसा द्वंद होना नहीं चाहिए किसी भी राष्ट्र के लिए या समाज के लिए, इसमें द्वंद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है, ये स्पष्ट है। इसका कारण मैक्वेले तो है ही है, मैक्वेले की जो पद्धति थी उसका प्रभाव आज भी है, निश्चित रूप से है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अच्छी बात है, लेकिन एक्सप्रेशन में भी किस प्रकार का चीजों पे डिबेट होना चाहिए तो समझ की बात है। तो एक्सप्रेशन बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जिसको मैंने बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक, तो इसमें मैं जब जिस तरह से चीजों को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत में जो समस्या है ये आज की नहीं है,
ये समस्या उस समय भी थी जब प्राचीन काल में इतिहास को हम देखेंगे, आप याद करेंगे जिस समय अलेक्जेंडर का आक्रमण हो रहा था, तो जीतता हुआ एक तरफ से आता गया। भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में, खंडों में राजा लोग शासन किया करते थे, और उसमें तक्षशिला में उस समय आंधी नाम के शासक हुआ करते थे जिन्होंने उसे संधि कर ली। अगर लोग मिलकर प्रत्युत्तर देने का प्रयास किए रहते तो तक्षशिला तक भी अलेक्जेंडर नहीं आ पाता, लेकिन हर व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ था जी। और उसके कारण बाद में जब अलेक्जेंडर और नजदीक आया, जब कुछ राजाओं ने उसका प्रतिरोध किया, तो उसको अनुभव हुआ कि किस प्रकार की भारतीय सैन्य व्यवस्था है, और आगे तो मगध से सामना होना है। मगध की सेनाओं के बारे में तो कहावत थी कि जब सेनाएं चलती हैं तो उनके धूल में सूर्य भी छुप जाता है। तो इस प्रकार की बात जब सैनिकों ने सुनी तो इतिहास में लिखा हुआ है, वर्णित है, जिसमें कि बहुत कंफ्यूजन हुआ और सेना ने कहा कि हम आगे जाना नहीं चाहते। अलेक्जेंडर 3 दिनों तक कैंप में ही रहा, अपने तंबू से बाहर नहीं निकला, और बाद में फिर उसने लौट जाने का फैसला किया। तो भारत की सैन्य सामर्थ्य में कमी नहीं थी, लेकिन कमी किसमें थी? एकता में, एक राष्ट्रीय भावना की कमी थी। उस समय तब विष्णुगुप्त चाणक्य ने उस चीज को समझा और देखा कि इस प्रकार से छोटे स्वार्थों में अगर ये सांस्कृतिक भूमि बटी रहेगी, लोग स्वार्थ सिद्धि में लगे रहेंगे, तो इसका कल्याण संभव नहीं है। तब उसने एक दिमाग में योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना शुरू किया और भारत एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। अब उस चीज को अगर आज के रूप में देखें और भी इतिहास में हम देखेंगे, तो जब भी भारत का पतन हुआ है तो कहीं ना कहीं स्वार्थ, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव हो, उसने अपने छोटे स्वार्थ के लिए एक ऐसी नीति पर कार्य करने लगा जिसने जो देश उसमें नहीं था। तो जब इस प्रकार की बातों को मैं देखता हूँ तो मैं तो उसी से जोड़ता हूँ कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं उनके अंदर निहित कुछ स्वार्थ है। स्वार्थ अनेक कारणों से प्रेरित हो सकते हैं, परंतु इस प्रकार की बातें राष्ट्र हित में नहीं है। राष्ट्र हित में समझना होगा कि राष्ट्र किन चीजों से बनता है, और निश्चित रूप से सबसे जो उसमें महत्वपूर्ण चीज है, आपकी विरासत से आपका अटैचमेंट होना चाहिए, विरासत से संदेशों को आपको ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। और इसमें द्वंद क्यों? इसमें कोई सांप्रदायिक बात तो है नहीं। जैसे आपने बात कही केंद्रीय विद्यालय की ही मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी केंद्रीय विद्यालय में 2 वर्ष पढ़ा हूँ। 9वीं 10वीं की पढ़ाई मैंने 9th भोपाल में था, 10th में केंद्रीय विद्यालय नोएडा में था। तो सुबह से प्रार्थना हम भी गाते थे, अस्तु मा सद्गमय, इसको यूनिवर्सल प्रेयर के रूप में हम लोग बोलते थे, और बड़ा अच्छा लगता था। एक एक शब्द में बहुत अंत में ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, तो उसकी जो भावनाएं हैं, भावना कहीं से किसी प्रकार की सांप्रदायिक नहीं है, बिल्कुल ही सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, है ना। तो बिल्कुल जो दूसरी बात है, बिल्कुल हम समूह में एक साथ चलें, हमारे विचार एक प्रकार के हो, अच्छे से हम मिलजुल कर रहे हैं, यही भावना है। इसमें द्वंद कैसा है? तो गर्व होना चाहिए हर भारतीय को। उस काल में जब विश्व में लोग इधर उधर लड़ते थे, सभ्यता नहीं थी, हमारे इस प्रकार के विचार हमारे ग्रंथों में है। इसमें द्वंद होना अच्छा नहीं है और नहीं होना चाहिए। और जो कारण है कहीं ना कहीं वही है, कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो कहीं से प्रेरित है। तो ऐसे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम प्रजातंत्र में है। तो प्रजातंत्र में अगर इस प्रकार के कोई तत्व हैं तो इस सबका दायित्व बनता है वो हावी ना हो। तो ऐसे तत्व जब हावी हो जाएंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र हित में नहीं होगा। तो इसमें सबको सोच समझकर देखना पड़ेगा कि इस प्रकार के तत्व कौन है, उनको चिन्हित करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो नीति है हमारी, उसमें किस प्रकार से ऐसे तत्व मुख्य रूप से हावी ना हो सके, उसके लिए प्रजातंत्र है। आप अपने बातों को रखिए, आप बताइए लोगों को कि भाई इस प्रकार की बातें थी, देखिए इस पर भी इनको द्वंद हो रहा है, क्या भावना है। विशेष टिप्पणी करनी आवश्यक मैं नहीं समझता, बाकी जनता खुद समझदार है, जानती है, और जब सही बात बताई जाएगी, अच्छे भाव से बताई जाएगी, तो निश्चित रूप से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग उस हिसाब से करेंगे। और जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है उसको विशेष रूप से सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से ऐसे लोगों का प्रतिकार किया जा सकता है। बिल्कुल स्पष्ट संदेश है सर आपका कि अपने विरासत को लेकर द्वंद्व मत पालिए, क्योंकि इसी ने इतना नुकसान किया। रोशन, जब हमने ये इंटरव्यू शुरू किया था तो मैं तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में सर के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन संयोगवश केंद्रीय विद्यालय का जिक्र हो गया, तो अब तो सर आप मेरे सीनियर भी हो गए। तो मेरी भी सर शिक्षा यही केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग से हुई है सर, 12वीं तक की। एक सर बिहार का जिक्र किया सर आपने अपने रोशन के प्रश्न का उत्तर देते हुए, और संयोगवश मैं और रोशन भी बिहार से ही है, हमारा मूल गृह प्रदेश है यहाँ। तो और आपकी विशेष रुचि है सर इतिहास और आर्कियोलॉजी पर सर आपका काम है, जैसा कि रोशन ने इंट्रो में बताया सर।
तो मैं एक, या गरीब प्रदेश होने का आप लालच समझिए जो भी, एक प्रश्न बिहार से मैं यह कहना पूछना चाहूंगा सर, कि आपने जो एंशियंट टाइम में गौरव की बात की, जब आपने बिहार का बताया और मॉडर्न टाइम का दिया, कि हम एक बिहार एक अपने किस वैभव की स्थिति में था जब मौर्य डायनेस्टी थी, चंद्रगुप्त का जिक्र जाते हैं सब। लेकिन सर ऐसा क्या हुआ कि जब हम आगे बढ़े तो हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं मानता हूं कि धीरे धीरे मेडिएवल में आकर के बिहार की जो क्षेत्र है वो फिर डिक्लाइन करते गया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल खत्म। तो ऐसा एंशियंट से मेडिएवल और फिर आधुनिक काल में आते हो, ऐसी कौन सी की घटना सर आप अपने स्टडी और अपने रिसर्च के आधार पर मानते हैं जिसके वजह से बिहार फिर अपने वैभव को खोता गया धीरे धीरे? देखिए, बिहार की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात ज्ञान की होती है। भारत अपने आप में, भारत जो है शब्द, वो भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत का अर्थ होता है उसमें लीन होना। तो जो भारत भूमि है ज्ञान की भूमि रही है, और ज्ञान की भूमि में सबसे महत्वपूर्ण वेदों को माना गया, जो सबसे ज्ञान के स्रोत माने गए। वेदों में भी सबसे यदि कुछ महत्वपूर्ण माना गया तो वेदांत के संदेशों को, और वेदांत की जो रचना हुई मुख्य रूप से बिहार के मिथिला में हुई। सारे जो उसके श्लोक हैं सब कुछ बिहार की ओर इंगित करते हैं। उसके बाद भी आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म का दर्शन, जैन धर्म का दर्शन, वेदांत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीन बड़े सोच इसी भूमि पर उभरे। इतिहास में और आगे जाते हैं तो आप देखेंगे विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा के रूप में होती है, विक्रमशिला के रूप में होती है। एक परंपरा चल रही थी, ज्ञान की बात थी। शौर्य की बात अगर हम करते हैं तो मौर्य वंश की आपने बात की, लेकिन मौर्य वंश से बहुत पहले जब महाभारत भी हम पढ़ते हैं, अध्ययन करेंगे, तो हम पाएंगे कि उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि जरासंध किस प्रकार का शासक था, उसकी शक्ति कितनी थी। इतनी थी कि जब कृष्ण, अर्जुन और भीम उनको आना था तो सीधे रास्ते से चाहते तो प्रयाग होकर के राजगीर की ओर आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए उत्तर कुरु से गए, नेपाल के रास्ते, गंडक के रास्ते होते हुए छद्म वेश में आए, ताकि सामना उनका बिल्कुल सामने सामने नहीं हो। और उसका मल्ल युद्ध जो हुआ वो भी किस प्रकार से हुआ महाभारत में वर्णित है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें थी। तो बिहार में मुख्य रूप से विशेषताएं जब हम देखते हैं तो ज्ञान, शौर्य, उद्यमिता। साउथ ईस्ट एशिया में आप चले जाइए, वियतनाम 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना जाता था। चंपा क्या था? भागलपुर शहर का ही पुराना नाम था। उसको बौद्ध ग्रंथों में विश्व का सबसे पहला नगर भी कहा गया। अब इन चीजों को अगर देखते हैं क्या कारण थे जिसके कारण बिहार उस समय किस प्रकार से उभर सका, तो बहुत बड़ी बात जो हम देखते हैं, अगर आप शासन व्यवस्था को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जहां बिल्कुल वैसा था, तो बिहार में अगर देखेंगे तो शासन बहुत डिफाइंड नहीं था। जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति था वही शासक था। जैसे नंद वंश को आप देखते हैं तो नंद वंश में भी आप देखेंगे तो कोई क्षत्रिय थे क्या? नहीं थे, शासन कर रहे थे। जब चाणक्य ने भी भारत के नए शासक को उन्हें चुनना था तो क्या उन्होंने किसी वंश को देखा? क्या उन्होंने किसी जाति विशेष को देखा? नहीं देखा। चंद्रगुप्त ने उनको क्षमता दिखी तो चंद्रगुप्त ही भारत का शासक बना। एक प्रकार की सोच में अगर आप देखेंगे तो बिहार की राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें उदारवादी व्यवस्था थी। ब्राह्मण भी थे लेकिन उस प्रकार का द्वंद्व नहीं था कि राजा किस विशेष जाति से ही होना चाहिए। तो बिहार के इतिहास को अगर आप देखते हैं तो एक प्रकार की स्वीकार्यता थी। उसी स्वीकार्यता के कारण बौद्ध धर्म का एक प्रभाव बहुत फैला जिसमें सभी लोग आ सकते थे। तो एक समता की भावना कहीं ना कहीं थी, और जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति था यदि उसको सामर्थ्य था तो सत्ता के साथ साथ ज्ञान में भी कहीं पहुंचने में उसको कमी नहीं हुई। कहीं ना कहीं चीजों में पतन होता है समय के साथ, तो ऐसे समय में उभरना होता है। और बिहार में जब इतिहास को हम देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सका, जटिल होती चली गई। आज के समय आप देखिए जो भी व्यक्ति बिहार के आपस में मिलते हैं क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले जानना चाहते हैं आप किस जाति के हैं। अगर अपने नाम में अपनी जाति का सूचक शब्द नहीं लगाया हो तो फिर आपके गांव के बारे में पूछेंगे, आपके पिताजी का नाम पूछेंगे। क्यों है ऐसी भावना? ये भावना केवल आम व्यवहार में नहीं है, हर चीज में है। राजनीति आप देख लीजिए, आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान में चले जाइए तो लोगों के व्यवहार में देख लीजिए। कहीं ना कहीं बहुत इस प्रकार की भावना जो समाज को खंड खंड में बांटती है। हर चीज में हर व्यक्ति अपने एक छोटी इकाई के रूप में स्वयं को देखता है। तो बिहार में इस प्रकार की भावना आती गई और बहुत गहरी जड़ों के साथ आती गई, जो बहुत बड़ा कारण है आज के इस पतन का कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा का निश्चित पतन हुआ। जहां याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान रहे, भगवान बुद्ध रहे, वहां पे आज के अगर युवाओं को हम देखते हैं क्या दिखता है? हर व्यक्ति लगा हुआ शॉर्टकट्स में।
अगर परीक्षा पास करनी है तो भी देखता है किस प्रकार से, किस माध्यम से, जुगाड़ से पास हो जाए, केवल इतनी ही उसकी लक्ष्य। वी आर नॉट थिंकिंग द एजुकेशन सिस्टम जिसमें टू प्रिपेयर लीडर्स, टू प्रिपेयर थिंकर्स। हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल छद्म रूप से पढ़ाई चल रही है। टीचर जा रहे हैं तो मिड डे मील बनाने जा रहे हैं, छात्र भी खाने जा रहे हैं, और एक पूरी उस प्रकार की बात, वो भावना जिसने कभी उस रूप में इतिहास में हमने देखा था, वो नहीं दिखती है। तो समझना होगा कि क्या चीजें थी जिन्होंने हमें कुछ समय महान बनाया। मुख्य रूप से ज्ञान, दूसरी बात समता की एक भावना जिसमें शासक हमारे किसी वर्ग से हो सकते थे, तीसरी बात उद्यमिता की भावना। बिहार के जो व्यवसायी थे कहाँ कहाँ नहीं जाते थे, अरब तक जाते थे, रोम तक जाते थे, दक्षिण एशिया में तो उनके आज भी चिन्ह मिलते हैं। एक प्रकार की भावना कुछ नया करने की। जब ये चीजें आएंगी, जब इन पर हम विचार करेंगे कि कहाँ क्या कमी है, शिक्षा, समता, उद्यमिता, अगर इन चीजों पे हम फोकस करके एक मॉडल के रूप में युवाओं को प्रेरित करें, और हर व्यक्ति अपने स्वार्थी, हर व्यक्ति रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चीजों पे स्वार्थ नहीं होना चाहिए और कुछ चीजों पे आपको सोचना पड़ेगा समाज के हित में। ऐसी भावना हमें विकसित करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से जब तकनीक नहीं थे, संचार के माध्यम नहीं थे, हम तब नेतृत्व प्रदान कर सकते थे। तो आज भविष्य में हम, हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, वंशज हम उन्हीं पूर्वजों के हैं। तो ये भावना जगानी पड़ेगी, और निश्चित रूप से अगर जगेगी तो भविष्य कुछ और होगा। बिल्कुल, ज्ञान, समता और उद्यमिता, ये सर का संदेश है। रोशन, आप? शिक्षा, समता, उद्यमिता, 3 E's मैं उसको कहता हूँ: एजुकेशन, इगैलिटेरियनिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सर, जैसा कि आपने कहा कि अगर हम अपने इतिहास की गहराइयों में देखें तो हम पाते हैं कि भारत हमेशा से मानव जाति का सरोकार रहा है। वह एक स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन रहा है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। तो सर, इसको अगर आज के दिन में हम कंटेम्पररी टाइम में देखें तो एक जो क्वेस्ट है टू बिकम ग्लोबल पावर, उस प्रोसेस में हम कहीं स्पिरिचुअलिटी और अपने कल्चरल रूट से दूर तो नहीं हो गए हैं? देखिए, महात्मा गांधी की एक बात मुझे बहुत याद आती है। तो उनका कहना था, अपने खिड़की और दरवाजे खुले रहने चाहिए ताकि शुद्ध वायु अंदर आ सके, लेकिन इतना नहीं खोल लो कि आंधी आ जाए और आपको उड़ा के ले जाए। तो अपने जो आपके जड़ हैं उनको समझना होगा। बढ़ना है, लेकिन जड़ अगर जल विहीन हो जाएंगे तो हम उड़ जाएंगे। तो इस बात को समझना होगा। ऋग्वेद में भी आप देखेंगे, आनो भद्रा क्रतुओ यंतु विश्वतः, सभी तरफ से अच्छे विचार हमारे पास आए। ये इस भावना को लेकर हम चलते रहे हैं। तो आने वाले समय के लिए भी जब मैं देखता हूँ, तो जब अपनी जड़ों को समझकर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम गिरेंगे नहीं। ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सर, एक भारत में विज्ञान और तकनीकी की परंपरा की बात की जाती है कि एक हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था, एक हमारा पावर हाउस ऑफ नॉलेज थे हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं वेदास से, पुराण से, गीता से, रामायण से। तो इसको हम लोग सर, वेदास को कंटेम्पररी टाइम में कैसे अपने आचरण में ला सकते हैं? यंग जनरेशन कैसे अपने आचरण में ला सकता है? क्या एजुकेशन सिस्टम में, उनके पाठ्यक्रम में, स्कूल्स में पढ़ाना ही एकमात्र इसका सॉल्यूशन है, या फिर कोई एक ऑल्टरनेटिव भी है इसका? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो निश्चित रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। कुछ उसमें जो पोर्शंस हैं, जैसे जो विज्ञान से संबंधित चीजें हैं, गणित से संबंधित चीजें हैं, तो जहां भी इनका रेफरेंस आता है, जैसे हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की, पाइथागोरस से बहुत पहले शुल्क सूत्रों में वो पूरा थ्योरम लिखा हुआ है। जीरो की खोज किसने की? हम ही लोगों ने की। पूरा गणित उस पर आधारित है। तो बहुत चीजें ऐसी हैं जब हम पढ़ेंगे तो भारत में गणित की एक बहुत प्राचीन परंपरा रही है। जो नंबर्स थे, डेसिमल सिस्टम, उसका भारत में उत्पत्ति हुई। तो इन चीजों को बताया जाता है, लेकिन जिस रूप में जो उनके मूल ग्रंथ हैं, जो मूल श्लोक हैं, उनको भी बताया जाना चाहिए। और देखिए, हो क्या रहा है जब हम ये नहीं करते हैं, तो हम क्या बन रहे हैं? वी आर बिकमिंग कॉपी कैट्स। हम लोग जो भी हैं आज भारत में आप देखेंगे तो इनोवेशन बहुत कम हो रहा है। जैसे हम लोग आज बात कर रहे हैं तो हम जिस फोन का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारत में नहीं बना होगा। इसकी जो टेक्नोलॉजी कहीं और बनी है, तो क्या हम नहीं बना सकते? तो हमको थोड़ा इस विषय पे भी सोचना होगा कि इनोवेशन, ओरिजिनल थिंकिंग क्यों कमी हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मातृभाषा में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं प्रारंभ में, तो उनका जो
दूसरी भाषा को समझने में, सीखने में इतना समय उनका व्यर्थ हो जाता है कि ओरिजिनल थिंकिंग नहीं रह जाती। फिर वो दे बिकम लाइक कॉपी कैट। तो बहुत सारी चीजों पे लोगों को सोचना पड़ेगा कि ओरिजिनल थिंकिंग, जिस देश में कभी जीरो को उत्पन्न कर सकते थे उस समय में डेसिमल सिस्टम उत्पन्न कर सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम तो बाद में आया, उससे बहुत पहले सोलर सूत्रों की आप गणित को देखेंगे आज भी आप अचंभित हो जाएंगे। तो जो वो उस प्रकार की ओरिजिनल थिंकिंग थी, वही वंशज तो हम भी उन्हीं के हैं। तो अगर उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, हमारे जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक है कि फॉरेन जर्नल में मेरी आर्टिकल पब्लिश हो जानी चाहिए, यही उसका लक्ष्य रहता है। लेकिन वो लोक कल्याण में कुछ उसका सिद्ध हो सके, इस पर ध्यान नहीं रहता है। तो हमको उस प्रकार से सोचना होगा, ओरिजिनल थिंकिंग, इनोवेशन, और ये अगर हम कर पाएंगे, इस भावना को जागृत कर पाएंगे जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर हमारे भविष्य के लिए होगा। रोशन हमारे बीच आज जो शख्सियत बैठे हैं श्री विकास वैभव जी, वो एक तेज तर्रार और जाबाज पुलिसकर्मी के पर्याय नाम के रूप में भी समाज में जाने जाते हैं। तो हमारे व्यूअर्स जरूर यह आशा लगा है बैठे हुए कुछ प्रश्न हम उस तरह से भी करें। सर, एक बात मैं इसी से आगे बढ़ते हुए पूछना चाहूंगा, हर काल में, चाहे अतीत की बात करें या वर्तमान की, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की प्रगति में कई सारे अवरोधक तत्व होते हैं। जैसे हमने पूर्व में देखा कि विदेशी आक्रमण, वैसे ही वर्तमान में टेररिज्म, आतंकवाद, नक्सलवाद। और हमारे समक्ष विकास वैभव जी है जो कि बिहार में नक्सलवाद को, यू आर नोन फॉर टेमिंग नक्सलिज्म इन बिहार। और मैं पढ़ रहा था आपके विषय में, रोहतास फोर्ट जो कि नक्सल नियंत्रण का माना जाता था, वहां आपने तिरंगा लहराया और एक संदेश पूरे प्रदेश में चला गया। तो मैं पूछना चाहूंगा सर कि आप एनआईए में भी रहे हैं, आप एटीएस में भी सर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो हर प्रकार का आपके पास अनुभव है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे नक्सलवाद और एक आतंकवाद की समस्या थी, लेकिन अब कुछ विगत वर्षों से एक अलग जो है अर्बन नक्सलिज्म की भी समस्या आ रही है, जिसमें बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, जेएनयू, जामिया और बड़े बड़े विश्वविद्यालय में यह देखा गया कि वहां से पास आउट लोग, हम कहते हैं कि शिक्षा अंधकार भगाता है, शिक्षा शायद अपराध की तरफ नहीं ले जाता है, लेकिन अर्बन नक्सल में देख रहे हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे डिग्रीधारी लोग खुद भी रेडिकलाइज हो रहे हैं और दूसरों को भी प्रभावित कर रेडिकलाइज कर रहे हैं। तो इसको टेम करना, आपने जिस प्रकार नक्सलवाद पर नियंत्रण किया, उससे ये कैसे भिन्न है सर, और इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, और ये कितना नुकसानदेह है? थोड़ा देखिए, मैं इससे चिंतित नहीं होता हूँ, है ना। जब देखता हूँ इस तरह की चीजों को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चिंता की बात नहीं है, लेकिन समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि एक पासिंग फेज है, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो तत्व हैं तो कहीं ना कहीं से प्रेरित हैं। तो खुद समझना होगा प्रेरणा कहाँ से मिल रही है। अगर आप सोचेंगे तो विचार हर प्रकार के, हर मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, हर प्रकार के मनुष्य होते हैं, निश्चित है कि उस प्रकार के मनुष्य भी होंगे। लेकिन अगर कोई विचार आप पर हावी हो रही है और आप उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है। हमको सोचना होगा कि ऐसे विचार क्यों हावी हो रहे हैं। जैसे इसमें हम कहते थे, जिसमें आप देखेंगे तो आप कहेंगे, अगर हम कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, सब कुछ हैं, भाई हमारे विचार में भी तो वो शक्ति होनी चाहिए कि हम प्रभावी हो सकें। अगर हम किसी विचारधारा से लड़ाई करनी है तो आपको सिद्ध करना होगा कि उस विचारधारा से हमारी विचारधारा बेहद अच्छी है। इसमें घबराने की बात नहीं है। जो इस प्रकार की विचारधारा लेकर अगर कुछ तत्व चल रहे हैं और हावी हो रहे हैं, इसमें हमें आत्मचिंतन करना होगा, सोचना होगा कि हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं। और जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो विचार श्रेष्ठ होगा उसकी वजह निश्चित है। और जो बातें आपने कही, जो द्वंद की बातें कही, उसमें कंफ्यूजन है, लोग अर्बन नक्सलिज्म की बात कर रहे हैं, तो बताना होगा कि भाई ये चीजें राष्ट्र हित में नहीं है और राष्ट्र का महत्व क्यों है। अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो इस प्रकार की बात करने वाले भी नहीं रहेंगे। अगर आज ये स्वतंत्रता है कि आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो स्वतंत्रता क्यों है ये आपको समझना होगा। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन धर्म को ही नष्ट कर देंगे तो महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है, धर्मेव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तो अगर आप धर्म को ही नष्ट कर दें फिर आपकी रक्षा कौन करेगा। लेकिन इस बात को समझाना होगा लोगों को कि भाई आप, बहुत अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, सब कुछ हम चाहते हैं रहे, लेकिन अगर है तो उसके कारक क्या हैं आपको समझना होगा। कारक सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है। तो आप सब कुछ हो लेकिन परिधि उसकी ऐसी ना हो जो राष्ट्र का नुकसान करे। इस बात को, जो ऐसे तत्व भटक गए हैं, तो मैं नहीं मानता कि सभी भटक ही चुके हैं। उनके साथ जैसे आपने डिबेटिंग सोसाइटी बनाई है,
उनके साथ डिबेट करना होगा। और भारत तो शास्त्रार्थ की भूमि रही है, जो भी धर्म यहाँ उत्पन्न हुए या उनकी एक परंपरा थी कि हर प्रकार के विचार आए और अपने विचार को सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ हुआ करते थे, लोग समझते थे। और शास्त्रार्थ के बहुत सारे इतिहास में उदाहरण हैं। आदि शंकराचार्य को देखें तो उस समय बहुत सारे मत थे, लेकिन उन्होंने किस प्रकार से अद्वैत मत के साथ पूरे भारत की 3 बार यात्रा की, जहां भी गए वहां के विद्वानों से उनके शास्त्रार्थ हुए, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि अद्वैत से महत्वपूर्ण या अद्वैत से श्रेष्ठ कोई अन्य मत नहीं है। तो मत हो सकते हैं, लेकिन मत किस प्रकार से पराजित करना है इसके विषय में आत्मचिंतन करना होगा। और जो लोग भटक रहे हैं उनको भी मुख्य धारा से जोड़कर इंटेलेक्चुअली प्रेरित करना होगा, यही मैं मानता हूँ। तो इसमें अगर ऐसा हो रहा है तो चिंता की बात नहीं है। निश्चित रूप से इतिहास में भी हमने देखा है बहुत सारे मत कभी हावी हुए थे, लेकिन एक ऐसी फिर ऐसा कुछ ना कुछ अवसर जरूर आया जब जो प्रधान मत था उसने उनको पराजित किया और उस प्रकार से एक सोसाइटी में सभ्यता विकसित होती गई। तो जब इस प्रकार के मत हावी हो रहे हैं, एक समय की बात है, बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे, लेकिन क्यों हो रहे हैं इसका तो चिंतन करना होगा। उनको पराजित करने के लिए आवश्यक जो कार्य है वो करने पड़ेंगे। और जो हम डिबेटिंग सोसाइटी बना के इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो निश्चित उस कड़ी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, आपका धन्यवाद सर हमारा इस प्रकार हौसला बढ़ाने के लिए। रोशन, आप प्रश्न करें। चूंकि सर आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जिक्र किया और राइट टू लिबर्टी का नोशन वहां पे आता है, लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और हम अपने आम जीवन में भी ये देखते हैं कि लोग फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं करते हैं। तो सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए जहां तक मेरा मानना है कि ड्यूटीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने के राइट्स हैं। तो ये जो नोशन है राइट टू लिबर्टी का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, इस इसका वेटेज, इसका एक मापदंड कौन तय करेगा? या अगर इंसान नहीं समझ पा रहा है कि उसका क्या लिबर्टी, क्या लिमिटेशन होना चाहिए, किस हद तक एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो भले ही कानून है, रूल ऑफ लॉ भी है, सब कुछ है, बट फिर भी हम लोग एक एंटी नेशनल सेंटिमेंट देखते हैं। हमें हमारे देश में एक्टिविटीज कैरीड आउट की जाती है हमारे देश में यूनिवर्सिटीज में, जैसा जगन्नाथ जी ने कहा। तो इन सब को रोकने की कैसे रोका जाए? एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आप कैसे इसको देखते हैं? कैसी एक चुनौती जरूर है, लेकिन इसको रोकने की संभावनाएं क्या है? नहीं, रोकने की पूरी संभावनाएं हैं। मैं तो पूरा महाभारत भी पढ़ चुका हूँ। पूरे महाभारत का संदेश ही यही है, धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, धर्म का नुकसान करेंगे तो धर्म आपका नुकसान करेगा। तो जिस संविधान की हम लोग बात करते हैं, तो अगर आप संविधान की रक्षा करेंगे तो हर बात की रक्षा करनी होगी। तो फंडामेंटल राइट्स भी हैं, ड्यूटीज भी हैं। और अगर वैसा आचरण नहीं करेंगे तो राष्ट्र विखंडित होगा, राष्ट्र का नाश होगा। तो उस प्रकार की चीजों को समझना होगा। जैसे हम लॉ की बात करते हैं, अगर आप इफ यू प्रोटेक्ट द लॉ प्रोटेक्ट्स यू, इफ यू ब्रेक द लॉ गेट्स बिहाइंड यू। तो ऐसे जो लोग हैं उनको समझाना पड़ेगा भाई अब ठीक है। निश्चित रूप से हम उदारवादी लोग रहे, हमारी संस्कृति वैसी रही है। भारत का जो मुख्य अगर हम किसी चीज को कहें, सबसे जो हमें एक शब्द में डिफाइन कर सकती है, दैट इज टॉलरेंस। कि हम हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं दूसरे व्यक्ति की भावना को समझने के लिए और उसको टॉलरेट करने के लिए। लेकिन ये बात आपको भी समझनी होगी कि भाई हम आपके विचारों से हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से उन विचारों से राष्ट्र का नुकसान होगा, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। तो यही मैं मानता हूँ। और जो महाभारत का मुख्य संदेश है उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है, और जो तत्व ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उनको समझाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जब हम इस प्रकार के माध्यमों से लोगों को प्रेरित करेंगे और भी लोग समझेंगे, चीजों को गहराई तक जाएंगे, तो निश्चित विजय इस भावना की ही होगी। ये बात इतिहास ने भी सिद्ध किया है। एक प्रश्न सर मैं आपसे करना चाहूंगा। प्रशासनिक सुधार से संबंधित वो प्रश्न माना जा सकता है। आपने स्वयं भी सर, आप एक IITian है, वहां से आपने सिविल सेवा की तैयारी की और खुद अब इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है आपके पास। तो अभी हाल में भारत सरकार की एक पहल थी लैटरल एंट्री स्कीम को लेकर के। हमारे यहाँ कहते हैं कि सिविल सेवा इज स्टील फ्रेम जो कि पूरे इस देश के प्रशासनिक व्यवस्था को थामे रहती है। तो लैटरल एंट्री स्कीम को लेकर के सर आपकी क्या सोच है व्यक्तिगत? मतलब किस तरीके से, क्या वो लाना सही है या फिर, क्योंकि वो नेसेंट फेज में अभी तो
तो क्या वो एक व्यापक सुधार में के तौर पे आ सकता है क्या लैटरल एंट्री स्कीम? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछिएगा तो द बेस्ट पीपल हु कैन डू परफॉर्म द बेस्ट शुड बी एट द राइट प्लेस, यही मेरा सोचना है। इसके जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चीजें हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके नेशनल जो राष्ट्र का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज पैरामाउंट, दैट इज फॉरमोस्ट, अगर सर्विसेज से जो लोग आ रहे हैं अपने समय पर अगर राइट जगह पर जाकर उस प्रकार का योगदान नहीं दे पा रहे हैं तो निश्चित रूप से देश को सोचना होगा। तो लैटरल एंट्री की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं किसी फील्ड में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, तो क्यों ना उनको अवसर देकर देखा जाए। किसी भी राष्ट्र के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस किसी भी सर्विस से किसी भी अन्य चीज से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही मैं मानता हूँ। इससे अगर लैटरल एंट्री भी हो रही है और राष्ट्र हित में है, मैं उसको कहीं से भी खराब नहीं मानता हूँ, होना चाहिए। The best people should get the right places, बस यही मैं सोचता हूँ, जो राष्ट्र हित में हो। रोशन, आपका प्रश्न। सर, एक प्रश्न है पुलिस रिफॉर्म्स को लेके कि शुरू से बात की जा रही है कि पुलिस में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, नए इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, रिफॉर्मेशन होना चाहिए। ये काफी समय से बात चलता आ रहा है। श्री अभयानंद जी के टेन्योर में थोड़ा बहुत इस दिशा में बिहार में काम भी किया गया। तो क्या आप समझते हैं कि सर आज के जमाने के मुताबिक ओवरऑल इंडियन पुलिस सिस्टम वेल इक्विप्ड है, या फिर क्या वेल इक्विप्ड नहीं भी है तो क्या सुधार की आवश्यकता है? देखिए, पुलिस में बहुत चीजों में सुधारने की आवश्यकता है। एक तो जो पुलिसिंग सिस्टम हमारी थी वो उस समय बनी थी जब हम पे विदेशी शासन कर रहे थे, और जो व्यवस्था बनी थी वो एक प्रकार से दमनकारी व्यवस्था थी। बाद में स्वतंत्रता के बाद जो व्यवस्था हुई उस व्यवस्था का स्वरूप बदल गया, और हम स्वतंत्र थे, दमन तो किसी का करना नहीं था। लेकिन उस व्यवस्था में जिस प्रकार की पुलिस बनी थी उसको रातों रात बदलना भी संभव नहीं था। द्वंद्व चल रहा था। उस द्वंद्व को सबसे समस्या क्या हुई, पहले इस व्यवस्था का उपयोग अंग्रेज किया करते थे। बाद में भारत में आपने देखा कि जो राजनेता थे उन्होंने भी इस माध्यम का प्रयोग करना शुरू किया अपने हितों को साधने के लिए। फिर राष्ट्र हित में वो भी नहीं है, तो किस प्रकार से पुलिस का दुरुपयोग नहीं हो, इसी को लेकर नेशनल पुलिस कमीशन के भी रिकमेंडेशंस हैं। बाद में आपने देखा और भी कमेटी बनी, उस मॉडल पुलिस एक्ट बना। मुख्य रूप वही था, पुलिस की जो स्वायत्तता है, कहां पर स्वतंत्रता के साथ उसको लॉ एनफोर्स करना है, इसमें समस्या नहीं आए। उस प्रकार के सुधारों की निश्चित रूप से आवश्यकता है। लेकिन साथ में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से उपयोग कर सकें, अपनी फोर्सेस को किस प्रकार से मॉडर्न इक्विपमेंट दे सकें। और आज के डेट में जैसे हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, तो स्मार्ट सिटीज में पुलिसिंग का जो सिस्टम होगा वो अधिकांश रूप से टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, जिसमें कैमरास का प्रयोग होगा, बहुत सारे एनालिटिकल डिवाइसेज होंगे। तो इसमें हमारी पुलिस को इक्विप करना होगा, साइबर क्राइम में करना होगा। हम लोग इतनी ऑनलाइन बातें कर रहे हैं और सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं। पुलिस में अगर रोड पर जो सिपाही खड़ा है उसको बिल्कुल बहुत कम जानकारी होती है, तो किस प्रकार से इस प्रकार के स्किल्स को पुलिस में हम ला पाए, इसके लिए भी सोचना होगा। तो बहुत चीजें हैं, समाज बदलता रहता है, इसी प्रकार से पुलिस को भी उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो जो दमनकारी थे उससे कल्याणकारी स्टेट में बदल चुके हैं। दूसरी तरफ प्रौद्योगिकी में बहुत विकास हुआ है। इन चीजों को लेकर के निश्चित रूप से सोचकर पुलिस में सुधार की आवश्यकता है। प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बिल्कुल सर। रोशन, एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा सर, आपके नाम में भी विकास है, तो विकास से संबंधित एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा सर। आप सेंट्रल डेपुटेशन पे भी सर्व कर चुके हैं और आपने बिहार के कई जिलों में सर्व किया है, तो मैं कह सकता हूं कि एक तरफ तो आपने रूरल पॉपुलेशन को भी देखा है, रूरल जिंदगी को भी देखा है, ग्रामीण भारत किस प्रकार का है, और अर्बन पॉपुलेशन को भी देखा है कि शहर का भारत किस प्रकार का है। और ऐसे में फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है इंडिया को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। तो एक तरफ हमारे देश में भी एक मिसमैच है लेकर के एक जो डिवाइड को ब्रिज करने की बात है, और दूसरी तरफ एक भारत को महाशक्ति के तौर पर ले जाने की बात है, जो कि हमारा आगे का रोड मैप है। तो सर, एक पदाधिकारी के तौर पे आपने इतनी लंबी सर्विस की है, आपको क्या लगता है सर कि इस लक्ष्य को साधने में किस प्रकार की चुनौतियां आएंगी? देखिए, लक्ष्य को साधने में बहुत चुनौती तो निश्चित आएगी, आसान नहीं है। सबसे तो बड़ी बात है कि हमारे मतभेद इतने हैं आपस में कि हम मिलजुल कर एक साथ बढ़ ही नहीं पाते हैं।
तो उसको भी मिटाना होगा अगर इस प्रकार के लक्ष्य साधने हैं। राष्ट्र हित में कम से कम हमारे विचार एक हो, हमारे सोचने का तरीका एक हो। हमें सीखना होगा जैसे किस प्रकार से राष्ट्रों ने विकास किया। सबसे अच्छा उदाहरण हमें कोरिया मिलता है। छोटा सा एक देश था, जब उसको भी स्वतंत्रता मिली थी उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, भारत से भी खराब थी। लेकिन आप अगर कोरिया की विकास यात्रा को देखेंगे तो बहुत ही छोटी छोटी चीजों के साथ, तन्मयता के साथ उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया। उसमें सबसे बड़ी बात थी जो शहरों का बनाना। तो शहरों में जैसे हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी या स्लम्स होते हैं, कोरिया भी पूरा वैसा ही था, उसी तरह से लोग रहते थे। लेकिन उन्होंने, आज अगर आप जाएंगे सियोल देख लें, किसी शहर को देख लें, उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। बड़े मल्टी स्टोरीज बनाए, जगह कम है कोरिया में, और लोगों को उसमें शिफ्ट किया, उस इलाके को साफ किया, फिर वहां नया बिल्डिंग बनाओ, सारी स्मार्ट सिटी की तरह से उसको विकसित किया। लेकिन तैयार हो, एक राजनीतिक सोच बने, और एक सोच बने कि हमें विकास करना है, विकसित होना है, उसमें द्वंद नहीं है। तो अगर इस प्रकार के चीजों से हम सीखेंगे तो किस बात पर द्वंद करना है, किस पर नहीं करना है, इसमें सहमति बनानी आवश्यक होगी। और जो भी राष्ट्र हित में निर्णय लिए जाते हैं उसमें एक आम सहमति बननी चाहिए। बनेगी, मतभेद कम होंगे, हम निश्चित आगे बढ़ेंगे। लेकिन हर चीज में अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहेंगे तो फिर तो वही बात हो गई, फिर हम कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। तो समझना होगा कि राष्ट्र हित में क्या आवश्यक है, उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। और फिर वही बात, विचारधारा की लड़ाई है, तो जहां विचारधारा की लड़ाई होगी तो लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन आपको आत्मचिंतन करके सोचना होगा। जो अच्छे विचार हैं, अंत में विजय उन्हीं की होगी, यही मैं मानता हूँ। रोशन सर जिस स्पष्टता के साथ हमें उत्तर देते जा रहा है प्रश्नों की श्रृंखला, तो प्रश्न दर प्रश्न बढ़ते ही जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि सर के समय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अपनी व्यस्तता दिनचर्या के बाद भी सर ने हमें समय दिया है। तो रोशन आप प्रश्न अपना करें फिर। हाँ सर, एक आखिरी प्रश्न रहेगा कि चूंकि आपको एक बिहार में गुरु कॉप का टैग दिया गया है और आप शुरू से टीचिंग आपका हॉबी रहा है, आपका पैशन रहा है, और आप गरीब बच्चों को और पढ़ाते भी हैं, ये बहुत ही नेक काम करते हैं सर। तो मेरा प्रश्न था कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में आप भारत के एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार देखते हैं? क्या ये ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होगा, या फिर हम किस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं? क्या उचित ये रहेगा कि हम इसी तरह मूव ऑन करते रहे, या कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जा रही है जिसमें काफी फोकस हमारे एंशिएंट लिटरेचर्स टेक्स्ट और ग्रंथों पे भी है? तो सर आप कैसे देखते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम को पोस्ट कोविड वर्ल्ड में? देखिए, पहली बात तो मैं बड़ा सकारात्मक आशावादी आदमी हूँ। तो कोविड बहुत समय तक रहेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कुछ समय की बात है, चीजें बदलेंगी। लेकिन इस चीज में, इस समय में हमने बहुत कुछ सीखा है। हमने जीवन शैली में किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए वो हम सभी ने सीखा है। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यमों का उपयोग बढ़ा है, छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस सीख रहे हैं, तो उनका प्रयोग भी आगे भविष्य में निश्चित बढ़ेगा। लेकिन जो ओरिजिनल क्लासरूम है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। उसका आनंद ही कुछ और है, उसमें पढ़ने का एक अनुभव ही कुछ और है। और सामाजिक रूप में, एक समूह के रूप में तभी लोग विकसित हो सकते हैं जब वो ओरिजिनल क्लासरूम चले। तो कोविड में जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड की आपने बात कही, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखी है, उसमें अच्छी चीजें हैं, उसको ग्रहण करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मूल व्यवस्था है वो तो रहेगी ही, उसको संरक्षित करके ही आगे हम चल पाएंगे, यही मेरा मानना है। चलते चलते एक आखिरी प्रश्न मैं करना चाहूंगा सर, धन्यवाद ज्ञापन से पूर्व। सर हम देख रहे हैं कि आजकल जिस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, हर क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। आजकल ब्यूरोक्रेट्स टर्न पॉलिटिशियंस का भी एक हम लोग देख रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं। हमारे आदरणीय विदेश मंत्री महोदय हैं, आर.के. सिंह साहब है जो बिहार के कैडर से ही गए हैं। तो इस प्रकार से है, और ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे भी डिबेट को देता है कि जब ये ब्यूरोक्रेट्स टर्न पॉलिटिशियन इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर एक प्रश्न आता है कि क्या राजनीति के लिए, या फिर राजनीति में भी किसी उच्च पदों पे जाने के लिए, जैसे आज के दौर पे तो राजनीति के लिए किसी भी प्रकार की न्यूनतम शिक्षा नहीं रखी गई है, जबकि भारत में हर जिम्मेदार पद के लिए, छोटे से छोटे पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, किंतु राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां नहीं है। तो क्या हम उसमें भी कुछ लेयर वाइज डिवीजन कर सकते हैं कि अगर आपको एक विशेष पद के ऊपर जाना है राजनीति में भी, तो उसमें फिर शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या सर? आपका व्यक्तिगत विचार जानना चाहूंगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी व्यक्ति के सामर्थ्य को उसके शिक्षा से नहीं आंक सकते। इतिहास में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े शासक थे जिनको वास्तव में एक्चुअली वो पढ़े ही नहीं।
लेकिन आज उनके नाम उदाहरण से हम उस पूरे इतिहास को डिफाइन करते हैं। तो ये तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र अपने आप नेता को चुनता है। और क्षमता, अब देखिए शिक्षा की अब बात करेंगे तो वैसे तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे किसी फैक्ट्री में काम करना चाहिए, निश्चित रूप से अगर करता तो वहां भी राष्ट्र में योगदान दे रहा होता है। लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि कहीं और से अलग भूमिका में हूँ और डायरेक्टली समाज को एक अलग तरह से बेनिफिट कर पा रहा हूँ। तो अगर आप किसी चीज को इस परिधि में बांध देंगे तो राष्ट्र हित में मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। लोगों को चुनने दीजिए, प्रजातंत्र है, और जो भी व्यक्ति जिसको नेतृत्व करना है तो सबसे सक्षम हो, उसी हित में इस प्रकार की व्यवस्था है और लोग समझ जाते हैं कौन कैसा है। तो इसमें उतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। बहुत अगर हम बांध देंगे तो कहीं ना कहीं बाद वही अवरोधक का काम करने लगेंगे। प्रजातंत्र है, चॉइस है, लोग चुन सकते हैं। तो राजनीति में उस प्रकार के अवरोध नहीं होने चाहिए। हाँ, एक अवरोध जो है अपराधीकरण राजनीति का, वो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जैसे अब 2 साल से अधिक आपकी सजा हो जाती है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इस प्रकार की बात है। तो अपराधीकरण नहीं हो, अच्छे लोग आए, उसके लिए क्या और हम कर सकते हैं, इस पर विचार करना होगा। लेकिन अनावश्यक अवरोध नहीं हो, ताकि सक्षम व्यक्ति निश्चित रूप से आकर अपना राष्ट्र में योगदान दे सके, ये हमें देखना होगा। यही मेरा मानना है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री विकास पवार सर। आपने इतना महत्वपूर्ण पद पर आप हैं, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, फिर भी शायद एकेडमिक्स के प्रति आपका जो लगाव है, इतिहास के प्रति आपका जो लगाव है, और आपके भीतर जो एक इच्छा है कि लोगों तक सही संदेश पहुंचाया जाए, लोगों का ज्ञान वर्धन किया जाए, शायद यही कारण थे जो आपका पीपुल्स फ्रेंडली, जैसा कि रोशन ने प्रारंभ में कहा कि आज हमारे बीच एक पीपुल्स फ्रेंडली पदाधिकारी बैठे हैं, पुलिस अधिकारी बैठे हैं। शायद यही सब चीजें हैं जिसने आज आपको फोर्स किया, कंपेल किया कि आप हमारे मंच पर अपना समय दे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज ये कह सकता हूं कि आप जितने जाबाज और जितने सख्त पुलिस अधिकारी हैं, उतने ही मृदु और मृदुता के साथ आपने आज इंटरव्यू दिया, हर प्रश्न को लिया, बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण रखे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं ऑल इंडिया डिबेटिंग सोसाइटी के मंच से करना चाहता हूं। सर, आप ढेर सारी तरक्की करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।